You're tired? Great, get to work. You're heartbroken? Great, get to work. Because if you can show up to work every single day despite of what you're going through, you're going to develop an unstoppable version of yourself. So when real hard times come, not just people's opinions, but real hard times, you will not only be ready for it, but you will dominate those hard times. Everybody agrees. At tea time, always rooting for the enemy. It must be exhausting. All I'll stare directly. Hi guys, welcome back to my channel. This is Alina Mirza and I'm back with a new vlog. So that's the 20th vlog, and as I already mentioned in my previous vlog, which is the watermelon one, that this vlog is going to be a bit intellectual. Like the gift that I'm going to be giving myself is a bit intellectual, not like really intellectual, but like a bit related to books, obviously. So I just bought myself some books that I'm going to be like revealing, and some are repeated because I have already bought some books for my sister before, but I just bought them this time for myself. Maybe the edition was different, but the book is same. And yeah, there are some books that I just bought for myself, and that's my 20th present. So let's just start the vlog, and I'm going to be showing you the books that I bought. ऐसी कुछ intellectual वाली नहीं है, बहुत ही जो वो होती है ना novel stories type की, ऐसी वाली है. So not intellectual, but intellectual in the sense कि something to read. Okay, so let's just begin. So the first book that I'm going to be showing you is like a collection of the same series, like Orange Education करके एक publication है, वहाँ की books हैं, but they're like story books literally. So because I like reading books, especially stories, so मैंने ये वाली कुछ books खरीदी है. ये एक जूल्स गैब्रियल वर्न की है, Around the World in 80 Days. So ये है एक, and yeah, I think this is a very, मतलब इसके जो पेजेस हैं they are very nice, और मुझे ना इस तरीके के बुक्स पसंद हैं जिनके अंदर के पेजेस आर लाइक सुपर नाइस टू रीड. सो ये काफ़ी अच्छी और एलीट सी बुक्स हैं, और इनकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं. एंड आई हैव ऑलरेडी इस तरीके की मेरे पास पहले भी रखी हुई हैं, और भी रखी हुई होंगी कहीं, तो मैंने सोचा थोड़े से और एडिशन इसके ख़रीदते हैं. एक है मेरे पास डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकिंस की. सो या ये स्टोरी है, एंड दिस इज़ अगेन इनके कवर्स दे आर लाइक वेरी यूनिक, द ब्लैक लुक. फिर शीनू इज़ आउटसाइड. आई डोंट वांट शीनू टू कम राइट नाउ. क्या है शीनू? नो, मैंने एक टेप अटका रखा है वहाँ पे, बट ये नो. शीनू भी. Okay, so next is the Jungle Book. Which is like quite famous. वैसे तो मुझे जंगल बुक मैंने पढ़ी हुई है, बट मुझे देखना है कि इसमें किस तरीके से हर उसकी एक लैंग्वेज डिफरेंट होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस, इम्प्रोवाइजेशन वगैरह होता है. प्लस द इमेजेस, इसके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, और ये रूडियर्ड किपलिंग की है जंगल बुक, ये तो सबको ही पता है. सो या एक जंगल बुक भी है. देन ओके, सो आई जस्ट टुक इट इन बल्क. तो मैंने काफ़ी सारी ये ले ली, तो मुझे अभी टाइम लगेगा इन्हें रीड करने में. वैसे तो ये एक दिन की रीड वाली है, ये ज़्यादा, दीज आर नॉट लाइक टू मच टू रीड, बट स्टिल. फिर मैंने एक सिंड्रेला लिया, बिकॉज एज यू गाइज नो दैट आई एम लाइक delusional, so I just love these kind of princess stories, and Cinderella is like the, what should I say, Cinderella is like the timeless. Cinderella is timeless. Cinderella से याद आया, when I was a kid, फर्स्ट क्लास की बात है, आई गॉट अ रोल. मतलब मुझे मैम ने बोला कि पता है हमारी क्लास में स्नो वाइट कौन बनेगी, तो सबने बोला कौन, बिल्कुल लिटरली ये सीन हुआ था, मुझे आज तक याद है ये. तो मैम ने बोला नहीं स्नो वाइट नहीं, इट वाज सिंड्रेला.
सो सिंड्रेला कौन बनेगी? तो मैम ने बोला ओ अलीना, तो मेरे को सिंड्रेला का मतलब रोल मिला था। बट उसके बाद मुझे थोड़े टाइम बाद पता चला वो सिंड्रेला स्टोरी नहीं, दैट टर्न इनटू अ स्नो वाइट स्टोरी। एंड स्नो वाइट स्टोरी, खैर स्नो वाइट का फिर वो मिला, तो मैंने सारे उसके डायलॉग सब कुछ रटे हुए, सब कुछ रट के मैं गई। बट क्या हुआ कि आई गॉट रिप्लेस्ड बिकॉज मेरे साथ थोड़ा सा नेपोटिज्म हो गया था वहाँ पे। सो या आई गॉट रिप्लेस्ड एंड फिर मुझे ड्रॉप बना दिया, और फिर मुझे ड्रॉप बनाया तो मैंने छोड़ दिया प्ले बिकॉज इट वॉज सो डिसरिस्पेक्टफुल। लाइक वाई द हेल, लाइक मुझे निकाले क्यों एट द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज आई जस्ट मैंने सब कुछ अच्छे से डायलॉग सब कुछ सही किया था। इट्स जस्ट द केस ऑफ नेपोटिज्म एंड आई डोंट लाइक नेपोटिज्म। सो या दैट वाज सो अनफेयर फॉर मी। बट एनीवे, तो सिंड्रेला की बात हो रही थी, खैर स्टोरी मैंने अपनी स्टोरी दिखा दी। नेक्स्ट इज़ द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। तो ये मार्क ट्वेन की एक स्टोरी है, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। सो ये मैंने रीड नहीं करी है बट मैंने इसको काफ़ी सुना था, बहुत टाइम से मेरा मन था ये रीड करने का। सो एक ये है। सो ये कुछ 5-6 बुक्स है जो कि मैंने अपने लिए बाय करी है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम डिफरेंट वन एंड द वेरी ट्रेंडिंग वन। मुझे एक बुक और चाहिए थी, वो मैं बाद में बताऊंगी कौन सी। पहले मैं आपको बेसिक वाली दिखा देती हूँ। सो ऐसी मेरे पास पहले भी थी बट आई डोंट नो वेयर आर देयर, सो इसलिए मैंने दोबारा से बाय करी क्योंकि मैंने नहीं रीड करी थी, वो सना ने रीड करी थी अपने टाइम पे, मतलब जब भी सना के लिए आई थी। सो आई जस्ट अब पता नहीं वो कहाँ रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि एक बार और ले लेता बिकॉज मुझे बहुत मन है ये रीड करने का, और ये बहुत पहले ट्रेंड करा था, अब तो नहीं। बट एक है इट एंड्स विद अस, कॉलिन हूवर। सो ऑब्वियसली द इंटेलेक्चुअल राइटर्स जो बहुत ज़्यादा अच्छे जो होते हैं ना, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक लवर्स, दे डोंट वो इस तरीके की स्टोरीज कुछ नहीं समझते हैं, बट आई लाइक दिस काइंड ऑफ फिक्शनल, और इस तरीके की फिक्शनल नहीं मतलब व्हाट का इट्स लाइक यार, बट ये न्यूयॉर्क बेस्ट टाइम सेलर थी तो आई डोंट नो, बट इस पर काफ़ी मीम्स भी बनते हैं। इट एंड्स विद अस, इट स्टार्ट्स विद अस, इसमें कुछ राइल से रिलेटेड स्टोरीज हैं। वंस आई रीड इट आई विल बी लाइक गिविंग माई व्यू ऑन दिस ऑल्सो बिकॉज मेरा बहुत मन है ये इट एंड्स विद अस रीड करने का। और ये मैंने थोड़ा सा स्टार्ट की थी उस बुक में से, फिर उसके बाद बहुत टाइम के बाद छूट गया वो, तो फिर वो अब पता नहीं कहाँ है। फिर इसकी दूसरी पार्ट है इट स्टार्ट्स विद अस। आई मीन इट साउंड्स कन्फ्यूजिंग कि पहले इट एंड्स विद अस एंड देन इट स्टार्ट्स विद अस, बट इसका कुछ प्लॉट ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है, जो भी मेन हीरो है और हीरोइन है जिसका नाम शायद लिली है, इसके बहुत इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह मीम्स आते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव लाइक गुड नॉलेज अबाउट इट। सो इसमें जो है उनका बिल्कुल जो प्लॉट है वो एंड हो रहा होता है, और इट स्टार्ट्स विद अस इसलिए है बिकॉज इसमें जो है एक नया हीरो है विच इज़ एटलस, हु इज़ एटलस, और उसके साथ प्लॉट स्टार्ट हो रहा होता है। सो दैट्स वाई पहले मुझे वो बहुत कन्फ्यूजन लग रहा था कि वाई दिस इज़ द पार्ट 1 एंड दिस इज़ द पार्ट 2, बट दैट इज़ द रीज़न। सो या सुपर एक्साइटेड टू रीड दिस। नेक्स्ट आई हैव दिस। ओके, सो ये अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, एक ये है अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर एंड इट्स ऑफ हॉली जैक्सन। तो ये भी न्यूयॉर्क द नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर, मैंने सारी बेस्ट सेलर ही छाटी अपने लिए। और इसमें इसकी ये लाइन बड़ी क्यूट है कि अ क्लोज्ड केस एंड ए ग्रेड स्टूडेंट हु वॉन्ट लेट इट गो। इट लुक्स वेरी ड्रामेटिक दो कि अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, the case is closed. The way they have like made the cover and all those lines, it gives a very mysterious vibe and I just can't wait to read this also. काफ़ी बड़ी है, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसे रीड करने में, बट कोई बात नहीं, we are readers, right? Okay, last but not the least, I have this. One of us is lying. So वन ऑफ अस इज लाइंग में क्या है कि 5 स्टूडेंट्स वॉक इनटू डिटेंशन, ओनली 4 लीव अलाइव। इसकी मुझे कोई स्टोरी नहीं पता, बट बहुत अच्छा मुझे इसका रिव्यू लगा था। कहीं पे मुझे किसी ने रिकमेंड करी थी ये, कैरन मैकमैनस की है ये। सो इट्स लाइक अ गीक, अ जॉक, अ क्रिमिनल, अ प्रिंसेस ऑफ अस, अ मर्डर, हु वुड यू बिलीव, कुछ इस तरीके की मिस्टीरियस है ये भी। और ये 400 रुपीज़ की बुक है, और ये आपको अमेज़ॉन वगैरह पे भी मिल जाएगी। वैसे तो कहीं पे भी अगर आप देखें तो डिस्काउंट रेटेड भी मिल सकती है, बट इस पे ओरिजिनल MRP 400।
एंड ये वाली एक्चुअली ये दूसरी करेंसी में है, सो आई डोंट नो हाउ मच इट कॉस्ट एग्जैक्टली इन INR, बट यू कैन जस्ट गूगल एंड चेक इट आउट। आज का तो हर जगह यही है वैसे। सो या जिस पे INR है वो मैं आपको बता सकती हूँ। बाकी ये लिखा हुआ है, ये देख लीजिए फिर। एनीवे, सो ये सारी बाहर की करेंसी में लिखा हुआ है इसमें। सो आप देख सकते हैं इंडियन करेंसी में अगर आपको चाहिए तो क्या रेंज है इसकी। एक पे लिखा हुआ था 400 के अराउंड एक बुक है, और या दैट्स इट। अब just the last book is left, which is this. So ये because you know I have this habit of, I have this hobby, पेंटिंग एंड आर्ट, यू नो इस तरीके की मुझे हॉबी है, मतलब ऑब्वियसली स्केचिंग एंड ऑल दैट। सो इसलिए मैंने एक आर्ट से रिलेटेड बुक ली है विच इज़ पैनोरामिक इंडियन पेंटिंग। सो ये RC लूथरा, CK लूथरा, निधि सेखन, ये सब इसके को ऑथर्स हैं। और या ये कुछ इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशनल पेंटिंग से रिलेटेड है, उसके बारे में है थोड़ा सा, यू नो जस्ट टू गेट नॉलेज, गेन नॉलेज अबाउट इंडियन आर्ट, इंडियन पेंटिंग स्पेशली, सो दैट्स वाई। और ये भी अमेज़ोन पे अवेलेबल है, पीछे लिखा हुआ है। बाकी इसका प्राइस इस पे नहीं लिखा हुआ, आई डोंट नो हियर। या 260 है इसका ओरिजिनल MRP, 260। सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। आई जस्ट यू नो बॉट ऑल दिस इन बल्क, एक साथ ही ली थी मैंने जाके। सो या दैट वाज ऑल। तो ये था एक इंटेलेक्चुअल गिफ्ट सीरीज, एज यू कैन सी। ओ माय गॉड, it's gonna be like taking lifetime to, you know, read all these books, and I'm like super excited about it. And you also let me know if you are a reader, if you like reading books, then what is your favorite book, who's your favorite author, and any of the books that I have just shown here, अगर किसी ने भी full उसे read करा है तो उसके बारे में you can write something if you want to write. So yeah, that was all. इतना ही था vlog. So thank you so much for watching the vlog. I hope you guys like it. Please do like, share, comment, subscribe, and do not forget to press the bell icon for more notifications. I'll be back with new videos super soon. Annyeonggi kaise ho? I don't know, but my camera is looking. My camera is like killing it today. Oh my god. थोड़े से pose बना लो. मुझे इतनी सारी बुक्स रीड करनी है गाइस। सो बताइए ये वाला गिफ्ट कैसा लगा वैसे, यू नो काफ़ी यूनिक था ये वाला भी गिफ्ट। एंड अब बस गिनती के कुछ गिफ्ट्स रह गए एंड आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड। अब अगर आपको कल का व्लॉग देखना है तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा। सो या बाय बाय।